हेलो, आप सबको नमस्कार। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से इस बार हमारे साथ हैं हमारे जो ट्रस्ट के चेयरमैन श्री ए सेतु माधवन जी। उस साइड पे फरीदा जी हैं, हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं, सिविल बी ए चीफ कोऑर्डिनेटर। मेरा नाम सिकंदर है। लास्ट टाइम पर भी आप लोगों से सबसे मिला था कि मैं फेयर डायरेक्टर हूँ इन माई कैपेसिटी एज द डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट। हम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, आधा घंटा क्यों रखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बहुत सारा क्वेरी होती हैं, क्योंकि हम क्वेरी को वेलकम करते हैं। बिकॉज यही क्वेरी आप जो पब्लिक को वहाँ तक वो मैसेज को ले जाएगी। चेयरमैन साहब कुछ आंसर करेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बुक फेयर का, मैं उसके बारे में आंसर करूँगा। आप मेरे ख्याल से सबको किट मिल गया है। वो मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा, वो अपने संबोधित करेंगे सेशन। थैंक यू। Well, good morning, everybody. I think I may have to speak in English because I'm reasonably comfortable in Hindi, but I think to start with, I'll speak in English. Well, as you know, not audible? Okay. It's okay now? Well, this is the 40th year of the New Delhi World Book Fair. As you know, until last year, this used to be a biennial event, and we took a very conscious decision to make it annual. And the government was very supportive of that, because as you know, this has to be a continuous program, because the mandate of the NBT is to promote reading habits and to make available books to the ordinary people at moderate prices. So we felt, this has to be a continuous program. So we are making it annual from the current year onwards. To that extent, we have made a lot of changes in our format, because we have given it in our press release. A few areas where a lot of new initiatives have been taken, I thought I could brief you on that. About the participation, this year we are having nearly 28 countries, including 4 international organizations like ILO, UNO, and UNESCO and all that. Plus, around 2,100 stalls are being put up. And to that extent, we are extremely happy that fair representation is being made. France is the guest of honor country. It's a part of their Bonjour program. And as far as the theme is concerned, as you know, it is indigenous voices, mapping India's folk and tribal literature. As far as the cultural performances are concerned, we are coordinating with the Sangeet Nadaga Academy. They are giving a lot of support. The book fair as such is being co-organized with the ITPO, and they have been quite supportive in all our efforts. We are extremely thankful to them. And I will tell you briefly about a few new initiatives we are taking this year. First of all, we are going to have a series of literary events. I think we are having, we have about 100 authors are coming. French embassy is bringing a few prominent authors from their country. So we are having different sessions where, apart from book reading, book releases, meet the author sessions, I think there will be enough opportunities for the readers to interact with the authors, both Indian and the French authors. So this Authors Corner is a new concept we have brought in. To that extent, this won't be just a book fair. This will be a literary event also. And another thing, we are putting up something called a book art show in one of the foyers, where the book art as such is a new concept for Indians. And to that extent, the children will like in what way art and book will go together. And on the business front, there are a few very important initiatives we are taking.
because this is the normal thing in any world book fair, right from Frankfurt to any country for that matter. Business also has to go with the book fair. So we are going to have 2 sessions, 2 days on the 2nd and 3rd, where we are setting up rights table, again in Pragati Maidan, where the publishers from different countries and the prominent Indian publishers will sit across the table, discuss on the business prospects about trading of copyrights, translation of books into different languages, and this will be dovetailed with the new scheme launched by the National Book Trust for financing for translation of books from Indian languages to any foreign languages for that matter. So when these publishers, in case they are interested in any of these translations, National Book Trust will be very happy to give them financial assistance. We have prepared a new scheme, a copy of which is available in your kit. Kindly go through that. It's a very, very innovative scheme. So this is a part of NBT's attempt to promote Indian literature abroad. I don't want to call it regional literature, it is Indian literature. We all write in Indian languages, not regional languages. To that extent, we are very confident that we are making a modest beginning this year. We are confident that it will take off in a significant way in the subsequent years. And another thing, another event is the CEO Speak on the 5th, where we are inviting the CEOs of major publishing houses from abroad and India, where they will interact with the publishing community and to a select group of interested people about what's happening in the publishing industry. And to that extent, this will be a new arena where we would come to know a little more about the publishing industry, new developments in the publishing industry. So these are some of the new initiatives where we felt perhaps the current year's book fair could be different from what you have been seeing all along. And obviously, Mr. Sikandar will supplement whatever I have already mentioned. Please. If you have any few questions, I can address. After that, मैं आगे बातचीत जारी रखेंगे. जैसे कि है कोई क्वेश्चन, नहीं तो और डिटेल में बात बताना चाहता हूँ. हाँ जी, बताइए साहब. जी. मेरा नाम डीके चौहान है. जी. ऑल इंडिया. सवाल ये है कि जी. ऑफिस से कितने उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, हर लैंग्वेज में से अलग अलग लैंग्वेज वाइज हमारे पास हैं, पार्टिसिपेशन का लिस्ट है. तो असमी से 2 पब्लिशर हैं, बांग्ला से 3, बंगाली से 12 और इंग्लिश से 837, गुजराती से 3, हिंदी से 380, कन्नड़ा से 4, मलयालम से 14, मणिपुरी से 1, मराठी 4, उड़िया 1, पंजाबी 8, संस्कृत 20 और संताली 1, सिंधी 2, तमिल 9, तेलुगु 3, उर्दू 41, 1305. This is the breakup of because last time somebody asked me how many Urdu publishers are participating. I have no idea, but the breakup was, now we have brought this breakup. And सबसे ज़्यादा जो है लैंग्वेज में हिंदी के बाद उर्दू है. हिंदी और उर्दू. तो अच्छी बात है. हाँ जी. पाकिस्तान से कितने लोग आ रहे हैं? पाकिस्तान से हमारे पास 15 या 16 का स्टॉल बुकिंग है अभी. तो आने का तो अब वहाँ से उनको वीज़ा मिलता है तभी आ पाएंगे. अभी तक हमारे पास खबर नहीं है. जी सॉरी. पिछला बार से कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा है, 4-5 ज़्यादा पार्टिसिपेशन है. वो उनके पास इंफॉर्मेशन होता है. हमारा तरफ से हम अपने तरफ से जो क्लियरेंस जो भी देने रिक्वायरमेंट है वो हमने भेज दिया. वो पाकिस्तान एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है पाकिस्तान है, वो देखेंगे उनको. अभी टाइम है. जी जी. यस यस. जी आप ये वर्ल्ड बुक फेयर कर रहे हैं जी. बहुत अच्छे से करते हैं. ये हमारे देश का एक बड़ा अच्छा पुराना भी है. पुराना एक बहुत अच्छा वो आप लोग जी. करते हैं. पर मेरा इसमें एक आपसे क्वेश्चन ये है कि इतने जब आपके पास राइटर वगैरह आते हैं जी तो हर साल किसी, चूँकि राइटर बेचारे के पास तो पैसा काम होता है जी, तो
कुछ ऐसे अवार्ड निकाले जिससे दूर दराज के लोग से आए हुए हैं वाले हैं जी, उनको 50,000 रुपए से लेके 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान करें। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जो इंटेलेक्चुअल एक राज है जो सारे दूर देश में लिख के हम लोगों के बारे में लिखते हैं या कुछ कहानी। नहीं, आई गॉट इट, समझ। So you should inspire those people. At least even if you inspire at least 20 people, I think 28 करने चाहिए क्योंकि हर स्टेट से आप यहाँ हैं। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको क्वेश्चन ना समझें। Now I say, one minute. Actually, मैं तो ऑथर हूँ मलयालम का। सी अवार्ड का मामला तो ज़्यादा से साहित्य अकादमी करते हैं, आपको पता है 24 लैंग्वेजेस में वो अवार्ड देते हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज तो 22 है, 24 लैंग्वेजेस में हर साल अवार्ड देते हैं। युवा अवार्ड देते हैं, बाल चिल्ड्रंस लिटरेचर में वो अवार्ड देते हैं। तो पूरा जी, जो मैं अलग से मिलते हैं जनरल बात करें जाकि पब्लिक लिए। अच्छा सवाल आपका, ठीक है, इसको विचार करेंगे आप, लेकिन आप एकदम नहीं हो पाए। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज। हाँ इस बार आपका थीम है इंडिजिनियस वॉइसेस जी। Do we have any publication in Dolby that is going to happen in the We are going to display around 200 books, including this language. So you come and see. This time we are the theme pavilion will reflect the life of tribal and folk people. So it would be a very educating for young children also. कुछ बच्चे तो दिल्ली से भी बाहर नहीं गए हैं, उनको आए देखे कश्मीर में एक गांव में कैसे रहता है, केरला में कैसे रहते हैं, मध्य प्रदेश में कैसे रहते हैं। तो वो एक हमारा जो नेशनल बुक ट्रस्ट का उद्देश्य है कि ये इसको देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हम उसको करें ताकि बच्चे भी कुछ सीखें। हाँ जी। Now here one more thing I will add. See, although we have only 22 recognized languages, we have published books in almost 35 languages, including some of the languages in the Northeast which do not have any script. So this is a major contribution of NBT which no other private publisher in the country can take it up. They cannot afford to do what we can. हाँ जी बताइए सर, इधर कोई साहब का आवाज था जी। या यही है कि आज जो इंटरनेट का एज है, कंप्यूटर एज है, उसका कितना फर्क पड़ा है, आपने कुछ किया है? ये तो मेरे बात तो दूसरा, व्हाट आई फील, ये दोनों को एक्सिस्ट करना पड़ेगा। हम भी ई बुक वगैरह उस एरिया में हम भी जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने हैं। इधर ये पवेलियन, हमारे पवेलियन में डिजिटल पब्लिशर्स का कुछ अलग जगह भी रखा है। ये तो वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। सो मेरा किताबें जो है वो तो Amazon.com में भी आता है, प्रिंट बुक में भी आता है। ये दोनों को एक्सिस्ट होना पड़ेगा, बिकॉज यंग लोग हैं ना, उनको तो किंडल में पढ़ना चाहते हैं। सो वी कुड हैव ऑल द ऑप्शंस, सो कोई एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका असर, आपका क्वेश्चन जो है, ये तो रीडिंग हैबिट के बारे में हमने एक सर्वे किया नॉर्थ ईस्ट में। उसका वो सर्वे का रिजल्ट्स आर शोइंग दैट द रीडिंग हैबिट इज स्टडी एंड ग्रोइंग इन नॉर्थ ईस्ट। सर्टन एरियाज reading habit is still intact. In some of the forums, the publishers from abroad have been telling us that book is still very, very significant abroad. Despite all this technological upgradation, book has its own place abroad among the reading public. कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करते हैं। लेट मी आंसर। ये जो एनबीटी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। एनबीटी रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो फिर 10 किस्म का जो बुक फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो नहीं करते। हमारा उद्देश्य डिफरेंट है। हम जो आईटीपीओ से जगह लेते हैं लाइसेंस फी बेसिस पे, मिनिस्ट्री से हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है। जो पैसा आईटीपीओ चार्ज करती है उसको मैं दूंगा तो कोई भी पब्लिशर आगे नहीं आ सकते। तो सारे सब मैंने उनके वो जो कम पैसा में उनको देते हैं। और हिंदी और लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेस का 50% जो कास्ट पड़ता है, वो भी जो नॉर्मल कास्ट है, वो भी जो असली वास्तव में जो होना चाहिए उससे भी कम है, 20-30%, उसमें भी आधा हम कर रहे हैं। तो वो सरकारी फंड से हो रहा है। वो कब तक, जब सरकारी फंड आएगा तब तक हम संभाल पाएंगे।
अदरवाइज बाकी शो जो कार वो शो है, बाकी में एक स्टॉल का दाम तो 1 लाख से अधिक है। हम तो बहुत सब्सिडाइज 40,000 में दे रहे हैं, 45,000 में टैक्सेस के साथ है। हमारा जारी है कि सरकार में हर बार फोरम में हम ये करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिले ताकि और सस्ते कराएं पब्लिशर के लिए। जी नहीं, आप अगर आप अपना लास्ट ईयर्स का बैलेंस शीट देखें तो कम से कम 20% प्रमोशनल एक्सपेंस को जाता है, पब्लिशिंग से ज़्यादा 20% प्रमोशनल एक्सपेंस है, बुक फेयर्स और दूसरा कुछ प्रमोशनल एक्सपेंस। मिस्टर सिकंदर जी, ई बुक के माहौल में जब ई बुक का जमाना चल रहा है तो इंटरनेट से एक्सेस वगैरह चल रहा है, तो उस चीज में यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इस बुक फेयर में क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या कुछ खास किया गया है उनको अट्रैक्ट करने के लिए बुक फेयर? देखिए ई कंटेंट की तरफ है कि खुद, क्योंकि मैं दूसरे को तब तक एडवाइस नहीं कर सकता, मैं खुद अपने को बदल लूँ, तो इसलिए हम खुद बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इन्वाइट करके 3-4 वेंडर जो सबसे बेस्ट इन द वर्ल्ड वी हैव ऑलरेडी फाइनलाइज, उसी को देखते हुए हमने जो सेकंड लाइन है उनमें से कम 2000 बुक जो एनबीटी का, उसमें खास करके सारे लैंग्वेजेस के पे रहेगा, हिंदी का भी और रीजनल लैंग्वेज, बच्चों का भी खास करके ये सब रहेंगे। इट विल बी मेड अवेलेबल इन ई कंटेंट। हमारे पास एक और प्रपोजल है जिसमें मतलब ई बुक ही डेवलप करेंगे। एक तो होता है कि एग्जिस्टिंग बुक को कन्वर्ट करना वो आसान है, हम चाहते हैं कि ई बुक्स ही डेवलप करें, बच्चों को इंटरैक्टिव बुक किंडल सब में अवेलेबल करवाएं। अब एक तो हम आधा कदम इसमें अभी तक हम सक्सेस हैं, तो गवर्नमेंट में भी हमारा सपोर्ट मिल रहा है, तो इसको देखते हुए बड़ा और भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था इस फील्ड में। तो हम लोग इस बार एक अलग से हॉल नंबर 12 में मेरे ख्याल से एक सेक्शन भी है, एक सेक्शन हमने ऐड किया हुआ उसमें ई कंटेंट के ऊपर, तो उसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट है। अगला साल मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, तब तक हमारा भी ई कंटेंट वगैरह आ जाएगा। मैं खुद ई बुक पढ़ता हूँ, लेकिन बात यह है मैं आईपैड लेके जाता हूँ, उसमें 200 बुक्स होते हैं, मैं 2 बुक भी नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन घर में 20 बुक होती है, उसमें 10 बुक पढ़ लेता हूँ। ये कन्वीनियंस की बात है। बच्चे ऐसा नहीं है कि केवल, लेकिन आप देखेंगे ई बुक कितने लोगों तक एक्सेस है, नॉट मोर देन 2-3%, लेकिन एट द सेम टाइम 3% आदमी को भी ख्याल रखना जरूरी है ना। और दूसरा ई बुक लाने का दूसरा मकसद ये है, जो आप सभी जानते हैं एनबीटी हर लैंग्वेज में पब्लिश करती हैं, बाहर जो भारतवासी जो विदेश में रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो जो उनके लिए फ़ायदा के लिए वो दे कैन ऑर्डर। और जहाँ एक सवाल, एक क्वेश्चन ऐसे उठा था कि आप ई एज में क्या, ई एज में तो एनबीटी की बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरे पास इतना बुक शॉप नहीं है पूरा, लेकिन हम वेबसाइट के थ्रू हमारा बुक सेल्स हो रहे हैं। अब रिसेंटली हमारा जो नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए पोस्ट ऑफिस के साथ एमओयू किए हैं। अभी आप देखेंगे देहरादून सर्कल में कम से कम 15-20 पोस्ट ऑफिस में एनबीटी बुक बिक रहा है। वो पोस्ट मास्टर जनरल का परसों फोन आया, साहब आपने क्या कर दिया, सारे तो किताब का हो रहे हैं, हमारा तो पोस्ट ऑफिस का काम कम हो रहा है। मैं अंदर से मुस्कुराहट में सोचा कि अच्छी बात है। सो इस तरह का हमारा जो टारगेट है, जो इनएक्सेसिबल रीजन है, जिसमें आप टायर 3, टायर 4 जो हिल और बैकवर्ड रीजन्स है, वहाँ तक हमारे किताब ले जाना जरूरी है। उसके कदम हम कर रहे हैं। प्लीज़ यानी जी, हाँ जी सर साहब। साल भर में आपकी कितनी किताबें बेचते हैं एक साल में, एनबीटी कितनी किताबें बेच पाता है देश भर में? इसमें 1100 करीब तो हम लोग साल में पब्लिश करते हैं। 1100 टाइटल के तरह रीप्रिंट भी उसमें इंक्लूड होता है। कोई हमारा जो ट्रांजैक्शन 30 करोड़ का आसपास हमारा सेल्स टोटल सेल्स का, तो वो जो हमारा जो किताब का दाम आप समझते हैं कितना, 100 रुपया 150 रुपया। पिछला बार आए तो उस बुक का 200 रुपया, इतना 500-400, उसमें भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं। फिर भी 30 करोड़ हमारे लिए काफ़ी है। इसमें थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट बल्क सेल भी लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर, लेकिन हम लोग अभी पिछले 1 साल से हम लोग जो रिटेल सेल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा फर्क था, रिटेल कम था और जो बल्क सेल वो ज़्यादा था। नौ अभी बराबर आ गया। अभी पहले से आपका सेल इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं? क्या इंक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन देखिए बल्क सेल होता है, कभी कभी बार आता है 20 करोड़ का ऑर्डर कर सकता है, 10 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है, वो कभी कभी होता है, लेकिन इतना बराबर चलता है। हमारा गोडाउन आज के दिन खाली हो रहा है। वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज करने में आपको कितना खर्च आता है? ये सरकार, देखिए ये हमारा जो रेंट है करीब 18 लाख, तो हम 18 करोड़ जो है वो ITPO को देते हैं ऐसा लाइसेंस फी, ठीक है ना। 80%, 85% तो इसको ITPO को जाता है। जो बचता 15%
उसके अंदर हम अपना जाकी वो जो कि कंस्ट्रक्शन स्टॉल कंस्ट्रक्शन करना है, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग करना है और प्रमोशन करना, प्रिंटिंग करना, ये सब होता है। और एक बात भी टोटल खर्चा कितना आता है आपको? 22 से 23 करोड़ आता है। हाँ, उसमें से हमारा जो 7 करोड़ तक हमारा जो स्टॉल वगैरह करते हैं वो आ जाता है। इस बार 100-200 स्टॉल कम है पिछले कंपैरिजन में, लेकिन पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टॉल कम हो रहा है। तो अब तो हर साल आप करेंगे? हाँ, हर साल करें। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, हमने तो डेट भी फिक्स किया है नेक्स्ट अगला साल। अभी देखिए ITPO के साथ हमारा एक MOU हुआ है, उससे तो देखिए मैं बुक फेयर मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मुझे तो जगह तो चाहिए ना। जब तक जगह स्थिर नहीं है, डेट नहीं है, तो मैं आगे जाके बाकी बाहर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से उनको नहीं ला सकता। इसलिए हम MOU किए थे ITPO के साथ। इस साल से इन कोलैबोरेशन विद ITPO हो रहा है। मीना साहब हमारा जो OSD साहब को आना है, किसी वजह से नहीं आ पाए, वो रहेंगे तो आप वो भी बताते हैं आपको। हम लोग 2016 तक बुक कर चुके हैं डेट्स, प्लानिंग हो चुकी। ये बताइए जी। अब पहले आप साल में 2 साल के बाद जी। करते थे, अब हर साल करेंगे जी। तो सरकार इसके लिए कोई एडिशनल आपको फंड दे रही है? दे रही है, दे रहे हैं सरकार ने अप्रूवल दिया, अप्रैल में दे दिया अप्रूवल, तब जाके हमने बुकिंग की है। तो फंड मिला आपको? फंड मिल रहा है, मिल रहा है, मिलेगा। मिल रहा है। उसमें सरकार का तो कौन सा, सरकार नहीं तो हम क्यों करें? देखिए हम इतना पैसा हमारे पास नहीं हमारे है, पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते जी। और एक इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, हर एक स्टेट में एक बुक प्रमोशन सेंटर शुरू करने के लिए हमने एक डिसीजन लिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा है, अगर वो 2000 स्क्वायर फीट का एक हॉल दे सकते हैं, हमारा एक बुक शॉप होगा और एक कल्चरल सेंटर होगा, वहाँ कोई भी आके उनका किताब का रिलीज़ करे या बुक मीट द ऑथर या पोइट्री रीडिंग कुछ भी हो सकता है। वैसे तो त्रिपुरा में हमारा पहला सेंटर शुरू होगा इसी साल में। वैसे तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट से रिस्पांस मिल रहे हैं। वी आर आफ्टर इट, वी हैव रिटन टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। एक मैं पिछला बार भी मेंशन कर रहा था, कोई साहब पूछ रहे थे कि आप स्टेट में कैसे, हर एक रीजन में कैसे जाएंगे। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल दिल्ली में ऑफिस है, दफ्तर है, और बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, बेंगलुरु में है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है हर रीजन में पहुंचना। तो हमने एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था लास्ट जो 12th 5 ईयर प्लान के अंदर, उनमें हमने कहा कि प्रपोज किया था कि ओपनिंग अ बुक प्रमोशन सेंटर इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। उसके अंदर वो अप्रूव हो गया है 12th 5 ईयर प्लान में। और जो अब फंड्स लेकिन आना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आएगा, उसके तहत हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद MHRD ने सारे चीफ सेक्रेटरी को लेटर चिट्ठी लिख के ये कहा है कि आप NBT के लिए थोड़ा सा स्पेस आप प्रोवाइड करिए। वो स्टेट गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे या नॉमिनल लाइसेंस भी लेंगे। उसमें NBT एक किताब का एक छोटा सा एक बुक शॉप खोलेगा, उसमें NBT का भी बुक रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिकेशन का भी रहेगा, जैसे साहित्य अकेडमी, पब्लिकेशन डिवीजन, इस तरह का भी रहेगा। फिर एक एक्टिविटी सेंटर रहेगा, उसमें हम बहुत सारे बुक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करेंगे, खुद NBT की प्रोग्राम होंगी, बच्चों की एक्टिविटीज़ होंगी, और एक मोबाइल एग्जीबिशन वैन उसके साथ अटैच किया जाएगा। वो मोबाइल एग्जीबिशन वैन उस क्षेत्र में, उस राज्य के अंदर हर जगह गांव-गांव जाएगा। ये है प्लान। हमने इसमें एक अलॉटमेंट भी हो गया त्रिपुरा में, बाकी 4-5 स्टेट में ये पेंडिंग है। जैसा कि लेकिन रिस्पांस तो आ रहे हैं, रिस्पांस तो आ रहे हैं। भुवनेश्वर में है, एक खोलने की बात है, और जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं, बॉम्बे में नहीं है, हम पुणे में कोशिश कर रहे हैं। तीसरा हैदराबाद की बात हो रही है, और गोवा में सबसे पहले गोवा में शुरू हुआ था, लेकिन जगह भी अलर्ट हुआ तो वो जगह उनके लिए दूसरे काम के लिए दे दिया गया। तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम एक साथ 20-25 नहीं खोल सकते, साल में 2-3 करके इसको एक्सपांड करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। एक हम कहते हैं बुक अड्डा जो होते हैं किताब का, उन लोगों को हर जगह कोई तो जगह एक नेटवर्किंग बनाने के लिए, ताकि ये बुक जो रीडिंग हैबिट है ये सर्वाइव करें। तो वह अच्छा कदम है, गवर्नमेंट का हमारा सपोर्ट रहा। तो और सरकार खुद बुक प्रमोशन के लिए काफ़ी 2 गुना 3 गुना बढ़ाने के लिए एश्योरेंस दिया है। होपफुली मैं सोचता हूँ कि अभी पैसा आ जाएगा, ये सब काम होंगे। केवल हम विश्व पुस्तक मेला करने का ही काम नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। इसके अलावा हर राज्य में काफ़ी राज्य में 8 या 10 हम बुक फेयर करते हैं, बड़े पैनों पे पब्लिशिंग भी करते हैं, और पब्लिशिंग कोर्स भी करते हैं, और लिटरेचर को भी इनकरेज करते हैं। ये तो मेरा एक पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। हम इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये केवल जो बुक प्रमोशन को पॉइंट किए हुए ये प्रोग्राम है। प्लीज जी जी
जी देखिए Now, one important. Now, see, one important thing in all book fairs abroad, this business segment is important. They say matchmaking, B2B, and all that. So here it was not there. For the first time, we are doing this. Is one area which will be attractive to the foreign participants. I am sure that next year more players will come in, because they are interested in that, apart from the other literary events and all that. Then along with that, they will bring their authors and their other. No. No. So I think that, of course, they are not concerned. They are. No, the publishers as such, from abroad, they are not that much bothered about accommodation or thing. We give some for hospitality and all that. See, basically, we have to provide them a table, a rights table, and an arena for that, for meeting the Indian publishers, and for which NBT is the best forum in the country to provide that. No, French, they have already brought some of their major writers here. We are going to have a session with them. I think that booklet we have already given. They are screening some films. You could interact with their authors. And this is going to be, France is showcasing. It's a part of their Bon John program. देखिए मधुर, let me answer. देखिए पहला this purpose of making an annual is to make involving all, because it is an international fair. It's not a local fair. World over, we are 41 years old, and the world over there are fairs which has been organizing for 80 years, somebody even 20 years. 20 years people are overtaking us. It is not only a mela, people for this used for only for selling our books, and because ultimately the publisher needs some business. At the same time, our point of view is, until we could able to attract more and more foreign publisher, how about our marketing our own books, selling up, taking our Indian books abroad? For instance, I will quote, there are around 500 Chinese books are coming to India every year. Against 500, only 5 books, Indian books, are going to Chinese languages. It is unfair. So, in our part, we want to promote Indian books abroad. This is the only way. Call people from outside world, see, this is India, these are the opportunities, these are the avenues available for promotion of books. So it is a business for them. In a way, it is a promotion of Indian books in our point of view. So, and here, one more area. Until now, our rights list and our rights catalog contained only Indian writing in English. Now, we are going in a big way to bring in Indian language books also into our rights catalog. This is one area, because the foreign publishers feel that a lot are happening in Indian languages. So we are able to capture that spirit of India, whether it's Assamese or Bangla or Kannada or whatever it is. So I feel that we will be slowly developing a big market for the Indian language writing abroad. So please. No, in the rights table only 65 participants. देखिए राइट्स टेबल है, ये कुछ नहीं है, ये कॉपीराइट को सेल करने, खरीदने के लिए, बेचने के लिए है जी. It's individual publishers. Individual publishers. No, individual publishers. See, they could come to an Publisher Guild don't own any copyrights. Yeah. The person who could only come, who is ready to buy a copyright or sell his rights, unless the person has a right to sell, he cannot come to participate. Unless he holds an authority. So we sign an agreement. They exchange agreements, in principle agreement, across the table. So thereafter there could be further negotiation. So he should be either a rights holder or he should have the mandate to negotiate. So this is a forum, trade bar. See, Frankfurt Book Fair, this is a major activity. So here, in a modest way, we are making a beginning. I am sure that the number will go up in the years. Good thing is, without any help from foreign publisher or organizer, we are doing our Desi program, which is going to be very hit. In a sense, here in the rights table in India is different.
बाकी जगह पे वो हिंदी और अंग्रेजी को सेल करने के लिए होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टेबल पे मलयालम का भी कोई आ रहा है, गुजराती का भी आ रहा है, और वो चाहते हैं कि गुजराती वाला मलयालम वाला करना चाहता है, मलयालम वाला गुजराती करना चाहता है। ये नई चीज़ है, हम कर रहे हैं। तो अपने जो भारतीय लैंग्वेजेस हैं उन्हीं के बीच में भी एक अच्छा एक शुरुआत है कि कोई मराठी लैंग्वेज का कोई उड़िया में करना चाहता है, उड़िया वाला गुजराती को बेचना चाहता है, लेट देम फ्लो। तो इससे हमारा जो भारतीय लैंग्वेजेस के लिए, अपने जो लैंग्वेज के लिए प्रमोशन होगा। प्लीज़ सर, मेरा क्वेश्चन लोगों की सुरक्षा और इस बार सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि कुछ अवस्थाएं देखने को मिली, तो इस बार जो लोग जैसा कि आएंगे मेले में, जी एक होर्डिंग गिर गया था पिछले साल, मुझे याद है, पुस्तक गिरा हुआ है। नहीं, पुस्तक मेला, दिल्ली पुस्तक मेला हम नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड बुक फेयर हम वर्ल्ड बुक फेयर जी। अच्छा, तो जब इस बार जब लोग आएंगे तो क्या क्या विशेष सुविधाएं और सुरक्षा की दृष्टि से आप कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये वेन्यू जो ओनर है ITPO है, हम केवल टेनेंट है। वो जो जगह जैसा भी है दिया हुआ, इस जगह जैसा हम यहाँ इस जगह में बैठे हैं, इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन वो ITPO का जिम्मेदारी है, उनका जो सिक्योरिटी है, उनका सिविल डिपार्टमेंट में सब कुछ मेंटेनेंस है। लेकिन अगर आप समझते हैं कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इश्यू है जो खतरा हो सकता, तो आप मुझे बताइए, हम लोग उनको लिखेंगे, जाके ठीक हो जाएगा। पिछला बार आपके सुविधा के लिए, जो विजिटर का सुविधा के लिए, हम लोग स्टूडेंट वॉलंटियर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से कुछ लिए थे, वो अच्छा सफलता रहा। इस बार उनमें थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। टेम्पो ट्रैवल यूज, पिछला बार बैटरी ऑपरेटेड कार है, क्योंकि वो दूसरा गाड़ी अलाउ नहीं किए, वो थोड़ा बैटरी बैठ जाता था, क्योंकि इतना रश था कि वो गाड़ी बैठ गया। इस बार हम लोग टेम्पो ट्रैवलर 25-30 लगाए हुए हैं। एक मॉनिटरिंग के लिए भी एक स्क्वाड लगाए हुए हैं, थोड़ा असुविधा कम होगा। 3 हाल में हमारा इस बार नहीं है, तो बाकी एक्सेप्ट 3 हाल 8, 9, 10, उसके अलावा सारे हाल्स में हमारे जो बुक फेयर होगा। इस बार जो है थोड़ा सा, जैसा कि सर ने बोला है, मैं हिंदी में कहना चाहता हूँ, पिछला फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में, पिछला फॉर्मेट में हमने क्या किए हैं, जो बंद दरवाजे में हम लोग जो डिस्कशन होता था वो 40 होते थे, हम लोग 140 किए थे पिछला बार। इस बार हम खुल के सामने आए हैं, क्योंकि हमने देखा गया कि कंप्लेंट आ रहे थे कि बहुत बड़े बड़े आतर लोग आ रहे थे, और दोनों तरफ कंप्लेंट था कि जो विजिटर्स कहते हैं हम आतर से तो मुलाकात हो नहीं पाती है, आतर कहते हैं भाई हमें आप बुक लवर से तो मुलाकात नहीं हो पा रहा। सो उनके सुविधा के लिए हम लोग हर एक हाल में एक आतर कॉर्नर, एक छोटा सा बना है, जिसमें 50-60 लोग बैठ के सुन सकते हैं, उनमें इंटरेक्ट हो सकते हैं। उसमें NBT कोई खर्चा नहीं कर रही है। हम लोग पब्लिशर्स को रिक्वेस्ट किए हैं, वो जिसके पास जो आतर आ रहे हैं उनको हम लोग स्लॉट अलॉट कर दिए, वो मॉडरेट कर रहे हैं। इस बार एक कोशिश है, इस बार 100 के करीब आतर, इस तरह का आतर आ रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पूरा प्रोग्राम इसमें है, उनका है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होगा, इसके अंदर है। यू कैन बाय टुडे, इट विल बी पुट अप इन द वेबसाइट। एक स्प्रेडशीट है, एवरी डे किस किस जगह पे क्या प्रोग्राम हो रहा है वो सिंगल सीट पे अवेलेबल है। कोई 10-15 जगह पे एक्टिविटीज है, उसमें किस समय पे क्या हो रहा है एट ए ग्लांस, वो भी अवेलेबल होगा, आप इंटरनेट से ले सकते हैं। इंटरनेट में लेना, कोशिश करेंगे अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में कहीं अवेलेबल हो, समय कम है तो अगला बार इसको भी दूर किया जाए। जी हाँ, लेखक पांडुलिपि तैयार करता है, पब्लिशर उसको छापता है, फिर एक पुस्तक तैयार होता है। राइटर कम होते जा रहे हैं, जो उनको पैसा नहीं मिलता है। पब्लिशर इसलिए परेशान है क्योंकि उसका किताब का बिक्री कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप विश्व स्तर पर जो ये पुस्तक मेले का आयोजन करते हैं, भारत में इसका क्या भविष्य है, कृपया ये समझाएं। बहुत अच्छा भविष्य है। आप ये जो आथर्स का कॉर्नर क्रिएट कर रहे हैं, उसी के तरफ से कदम है। ये डिमांड सप्लाई फैक्टर है, आपको डिमांड आथर को क्रिएट करना पड़ेगा। उसको डिमांड क्रिएट करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आथर अच्छा हो 10 पब्लिशर ढूंढ के आएंगे, समझ गए ना। अब तो ये लेकिन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी हो रहा है, कई सारे आथर, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये फोरम भी नहीं है। मैंने जी आप 5,000 रुपये ले लीजिए, मेरे 100 कॉपी कर लीजिए, पब्लिशर के पीछे भाग रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है। तो नहीं बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी से सर्विस से हूँ। नहीं, आप देखिए, आप कहीं भी आपका राय दूसरा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी है। लेकिन सबको देखते हुए मैं इसलिए तो डिमांड क्रिएट करने के लिए ये आथर्स कॉर्नर हम क्रिएट कर रहे हैं। हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आथर्स को, अपने को। अब डिमांड होगा, अपने आप पब्लिशर भाग के आएंगे। उन्होंने देखा इस फलाना आथर्स कॉर्नर में ये बढ़िया डिस्कशन हो रहा है, पीछे पीछे आएगा, सर काट दीजिए, आपका कोई बंडल पे मैं छापूंगा, प्लीज। No, HRD minister is urgently has to go. Some pressing demand on behalf of Prime Minister, he has to go to Cambodia.
Now he has asked our the senior most MO is Dr. Sasi Tharoor to inaugurate the book fair. It is there. In fact, we had printed the invitation. No. No. It's not. No, you can see that we had even printed the invitation card with HRM's name. Tharoor Saab was, we have called him for a business session on the next day earlier, and this session was supposed to be inaugurated by the Pallam Raju Saab himself. We got a confirmation 2 months back. Please. Mr. Chairman, you said in the new initiatives, NBT will be assisting financially to the people who will be translating the foreign languages to Indian languages. No, the other way around. No, actually from Indian language to foreign language. That we finance. Not, I will tell you, see, there are two ways of doing it. If you have an English version already available, this is one leg of the financing. That means English to foreign language. If you don't have an English script, if you have it in Bangla, okay, from Bangla to English and English to German. So on both legs, we have a certain formula, provided there is a publisher interested in publishing that book. There we cannot do anything. If there are takers, we will finance them. So, जो डील होता है B2B में, राइट्स टेबल में, अगर वो चुन गया तो हम उनको फाइनेंस कर देंगे, हमारे स्कीम में फाइनेंस कर देंगे. जी. I have a simple question. Which is the best seller book of NBT till date, and what are the range of topics? All the books are bestsellers, sir. Don't put us into cut. All the books are, especially we have an Adan Pradhan series, which is selling well. It depends upon the sales force, If you don't take out the book from the godown, then it can't be sold. So, last year the theme was 100 years of cinema, Indian cinema. This time tribal and folk literature. No, that we had last year. Last time we sensitized the thing. Every year we will have a new theme. This time we are also bringing in a cosplay where the costume, the children, school and college children will be coming in a different costume to different character of the... close character. Madhur, more books. We have a lot of books on Mahatma Gandhi, Nehru, all national leaders we are having. Many books. Here I will tell you, apne jo question, we have a lot of demand for translation books on Mahatma Gandhi, Panditji, Tagore, national heroes like that. We have demand for translating. See, for example, recently we concluded some agreement for translation in the Arabic language. एक बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रमोशन ऑफ एनबीटी बुक्स के भारत सरकार के तरफ से भी मंत्री जी भी खुद हम लोग एक प्रपोजल भेजा था कि एक एमपी लाट स्कीम के अंदर फंड्स हैं, उसमें 23 लाख तक बुक लाइब्रेरी के लिए खरीदने के प्रावधान है. तो उसमें एचआरडी मिनिस्टर खुद ही हमारे लिए चिट्ठी सभी एमपीज को लिखे हैं, वो सब कुछ जा रहा है. तो इससे भी थोड़ा एनबीटी की बुक्स को जो सस्ते दाम अच्छे बुक्स मिलते हैं, इसके लिए हर लाइब्रेरी में पहुंचने का इसमें भी एक चांसेस है. और कोई क्वेश्चन नहीं तो वी कैन क्लोज इट एंड वी हैव अ हाँ जी प्लीज. Schedule. Rest can have a lunch if the only the question. हाँ जी बताइए जी बताइए. हाँ जी. हिंदुस्तान टाइम्स में मेरा स्टेटमेंट है कल का न्यूज़पेपर में. इट इज़ वेरी कैंडिड क्लियर. आवर इज नहीं इनके बारे में हम नहीं कैंडिड क्लियर. नहीं ये उसके बारे में बताना ठीक नहीं लगता. मैं तो खुद जयपुर फेस्टिवल में था, इसके बारे में बताना तो ठीक नहीं. देखिए ये किसी को बारे में ऐसा नहीं कह सकते. जी जो हिंदी वाला मेरे से पूछ ले सर से अंग्रेजी है हिंदी का. हाँ जी
आई विल बी हियर, जब सभी को अटेंड करने के बाद जाऊँगा। उसके अंदर देख लीजिए वो फरीदा हाँ जी प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ सारे चलो भाई नेट में देखना हिंदी पहले रखना पहले मेरा चलो चलो हाँ जी सर टोटल देवी आगे रुक तो जाओ माइक लाओ चलो करो ना पूछो जी जी शुरू करें सर इस बार क्या खासियत है? जो भी मुख्य खासियतें हैं इस बुक फेयर की से देखिए एक बुक फेयर जो है ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर पिछला वर्ष तक वो 2 साल में एक बार था, इस बार से एनुअल हो गया है। 40 साल से इस बुक फेयर कर रहे हैं। प्रगति मैदान में ये होगा, 4 तारीख को शुरू हो रहा है, 10 तारीख तक चलेगा, 7 दिन के लिए। और जो पहला 2 दिन है 1 बजे तक वो बिजनेस आवर्स है, या वो स्कूल और जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के लिए खुला रहेगा। 1 बजे से मिलेगा, टिकट्स वगैरह मिलना शुरू होगा, 8 बजे तक है। और तीसरा दिन बुधवार से लेके यानी 6 तारीख से 10 तारीख तक सुबह से शाम तक रहेगा। इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन है, इसमें 45,000 स्क्वायर मीटर एरिया में ये स्प्रेड है। पिछला बार जितना है 2300 स्टॉल्स और स्टैंड्स हैं, इसमें हर लैंग्वेजेस का मिलेंगे। इसमें इस बार पुस्तक मेला को माननीय मंत्री है MOS डॉक्टर करण सिंह है, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर है। एम्बेसडर फ्रांस के एम्बेसडर भी रहेंगे। इस बार नया कुछ किया है, इस बार पिछले बार का कंपैरिजन में इसमें खास करके एक कंट्री को गेस्ट ऑफ ऑनर बन के बुलाने के लिए कोशिश था। इसमें पहला बार फ्रेंच आया है। फ्रेंच जो है कम से कम 40 या 45 लोग साथ लाए हैं। उनमें जो ऑथर्स है, राइटर्स है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, कुछ स्टूडेंट्स हैं। रोजाना कुछ प्रोग्राम होगा उनके पेविलियन में, और रोज ही एक फ्रेंच मूवी उसमें सागुदलम थिएटर में दिखाया जाएगा, बेस्ट अवार्ड विनिंग मूवी। उसके अलावा हमारा 3 पेविलियन है, वो ट्राइबल और फोल्क लिटरेचर के ऊपर फोकस है। जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट बार सिनेमा लिटरेचर का दर्जा गया था, वो बहुत अच्छा हिट रहा। इस बार ट्राइबल क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है वो ट्रेडिशनल कल्चर है, वो उसको दिखाने के लिए कोशिश है। इसमें 200 से अधिक किताबें डिस्प्ले होगा। बहुत अच्छा माहौल उनकी जो ट्राइबल और फोल्क का जो माहौल है उसके अंदर रहेगा। और दूसरा है इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रन और जो यूथ पेविलियन है। पिछला बार हम केवल चिल्ड्रन के लिए पेविलियन रखा था छोटे लेवल पे, इस बार एक पूरा हॉल के लिए डेडिकेट किया है इसमें, और चिल्ड्रन और यंग के लिए उनको अटेंड करने के लिए इसको उद्घाटन है। और राज्य मंत्री दूसरे राज्य मंत्री करेंगे, नितिन प्रसाद करेंगे, और उसमें CBSE का चेयरमैन रहेंगे और केंद्रीय संगठन का कमिश्नर रहेंगे। उसमें बच्चों लोग भी रहेंगे, इनोवेट करेंगे। सर आप स्टेट्स में कब तक ये जो उसके अलावा हम लोगों का जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स है इस बार 4-5 और लोग बड़े हैं, और हर कंट्री से इसमें 5-6 कंट्रीज और जोड़े हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के ऊपर हॉल नंबर 18 में पेविलियन है, क्योंकि 150 ईयर्स एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए हैं। और रोजाना शाम को संगीत नाटक अकेडमी का हेल्प से हमारा रोजाना शाम को प्रोग्राम होगा, और 4 बजे तेजल भाई इनाग्रेट करेंगे। और ये भी मनोरंजक रहेगा लोगों को, क्योंकि ट्राइबल जो है लिटरेचर का बारे में ये भी एक उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो वी कैन नॉट सेपरेट दिस कल्चर विद सर पाकिस्तान से जो प्रकाशक आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, और ये तय अभी माना जा सकता है कि वो आ रहे हैं? आने के पूरा चांसेस है। उन्होंने पैसा दिया है, हॉल बुकिंग किए हैं, और 16 स्टॉल्स के करीब है। तो हमारा तरफ से सारे क्लियरेंस है, लेकिन ये देखना होगा कि जो इंडियन हाई कमीशन है जो पाकिस्तान में, मैं अनुरोध करूंगा उनके माध्यम से ये इस तरह का जो इनिशिएटिव है ये खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर बार पाकिस्तानी भाई लोग आते हैं, इससे हमें भी फायदा होता है। ये काफी सारा इंडियन बुक्स ले जाते हैं, उनके लिए इंडिया का जो खिताब है, इसलिए एक माध्य एक जो लिटरेचर का लिंक है ये बड़ा होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत है, और बाकी कंट्रीज का आ सकते थे, ये भी हमारा
लैंग्वेज के लिए। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कमर्शियल एक्टिविटी। सर स्टेट्स में आपने अभी बताया कि आप स्टेट्स लेवल पे भी जा रहे हैं, कब तक पॉसिबल होगा कि आपका जो यूनिट है वो हर स्टेट में अवेलेबल होगा? देखिए, हमारा यूनिट आज भी अवेलेबल है मोबाइल एग्जीबिशन का रूप में और पुस्तक प्रदर्शनी जिसका पुस्तक मेला का रूप में। लेकिन हमारा ये है कि वहाँ पे आतर तक कैसा पहुँचे। सपोज कोई आतर नया उबला हुआ ये उबल के आ रहा है, कोई नया आता है, वो अगर हमें रीच आउट कैसा होगा, वो हमारे पास एक सेंटर होता है, उनके साथ वो संपर्क कर सकते हैं। एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है। हमारा जो लैंग्वेज के एडिटर वो दिल्ली में बैठता है, वहाँ पे मराठी में क्या लिख रहा है, तो जब तक महाराष्ट्र में एक आदमी नहीं रहता हमारा जो संपर्क नहीं हो पाएगा। इसको जोड़ने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोग्राम है। कितना खर्चा आता है और क्या एनपीटी तो खर्चा है, देखिए टोटल जो खर्चा है ये 20 करोड़ से ज़्यादा आता है, 20-21 करोड़ से करीब। सबसे ज़्यादा जो 80% जो खर्चा है वो ऑल हायरिंग चार्जेस आईटीपीओ को मिलता है। इस बार हम लोग आईटीपीओ से बात करके थोड़ा बहुत हम लोग कंसेशन लिया है, ऐसे कोई पार्टनर दिए हैं, कोऑपरेशन मिल रहा है। और लेकिन जो स्टॉल हम अवेलेबल कर रहे हैं वो 40,000 प्लस एक्सेस का है, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं तो छोटे पब्लिशर नहीं आ पाएंगे। और रीजनल लैंग्वेजेस का और जो इंडियन लैंग्वेजेस का उसमें 50% डिस्काउंट मिलता है। एक साल के लिए हम देते हैं। ये तो कुछ नहीं करते हैं, हमारे तो 10-15 करोड़ तो खर्च होता है, 15 करोड़ तो हमारा खर्च होता है, हाथ से जाता है। ये तो कुछ नहीं है, ये यही करते हैं कि रीडिंग हैबिट्स ये करता है पब्लिक, वही हमारा ये एंट्री फ्री नहीं है। स्कूल बच्चों के लिए 10 रुपया का टिकट है और 20 रुपया उनके लिए। अगर कोई स्कूल अगर आना चाहते हैं, कोई स्पॉन्सर ट्रिप है, वो एनबीटी को कंडक्ट करें ताकि हम उसके लिए जो उनकी जो फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश करेंगे। जी, बड़ों का 20 रुपया का है। इस बार जो आथर्स कॉर्नर है वो मेन हमारा अट्रैक्शन है, उसमें 50-55 इंग्लिश आथर आ रहे हैं और 25 या 30 हिंदी के और रीजनल लैंग्वेजेस का आथर आ रहे हैं। साहित्य अकेडमी भी इसमें प्रोग्राम कर रहा है और रोजाना बच्चों का जो पेविलियन में रोजाना एक्टिविटीज़ होगा मोटिवेट करने के लिए। और एक फेयर न्यूज़ भी हमारा निकल रहा है 16 पेज का, उसमें रोज एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाएगा। हम फैसिलिटी करेंगे, अवेलेबल सब्जेक्ट टू अवेलेबल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। हाँ जी। You said in your speech that Urdu is the second largest How many books you have published in Urdu and what is the new project in the offing? आपने एंड तो मैं नहीं बता सकता, आप ऑफिस में आइए, चाय के ऊपर चाय पिला के आपको दिखाएंगे। ये अभी मेरे पास नहीं है ना, बुक फेयर के लिए मैं इतना ही फोल्डर ले आया। जी, डायरेक्टर नेशनल नहीं है कह रहे ना। अच्छा सर अपना कार्ड दीजिए। अच्छा, मीडिया के लिए वो भी वैन के लिए मैं एक बार वो भी वैन के लिए 1 नंबर गेट से एंट्री होगा। पास वगैरह पास वगैरह उसके अंदर है आपके? नहीं, वो भी के लिए नहीं, मैं वो 1 मिनट वो भी वैन के लिए कहना चाहूँगा। 1 नंबर गेट से एंट्री होगा। आप पहले हमारा जो मीडिया सेल है इनसे आप कंडक्ट कर लीजिए। हाँ, मीडिया सेल ये कुमार समरेश होंगे और इनसे बात कर लीजिए, कांटेक्ट ले लीजिए। वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव गेट में आएगा तब वो आपको एंट्री अलाउ करेंगे। जी, उसको अलाउ। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। आई नो 8 लैंग्वेज इंक्लूडिंग बंगला। मैं बिहार में भी रहा हूँ, जरिया में भी रहा हूँ। हर गढ़ के पानी पिया हूँ। देखो यार, किसी के पास होगा, अभी यहीं होंगे। नाम वगैरह है, हमने रेकमेंड करके भेजा है, सारे क्लियरेंस यहाँ से तो गया हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान लास्ट में वैसा इशू करता है, उसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। वीज़ा मिलेगा तो वो इधर आ जाएगा ना, तो क्लियरेंस वगैरह होके जाता है, रेकमेंड होके, तो हमारे तरफ से 2 महीना पहले कार्रवाई हो जाती है।